Everyone, this is Shant Verma from Shant Commerce Classes. So, we have started our admission of partner chapter and we have in the, completed how to calculate the new ratio and the sacrificing ratio in the two lecture. That is lecture part one and part two. And today, I'm going to start the goodwill adjustment. This is a very important part of our, chapters. So I have divided this, topic into two parts. That is part one and part two. So I hope so you will understand that. Let's proceed. Goodwill adjustment part one. Please guys like my channel, subscribe and share with the others so that everyone can get a benefit from that. I am preparing good content for all of you guys. I hope so you will do that. So today's topic is goodwill and the accounting standard 26. Firstly we will came to know what is the meaning of goodwill, and then we will proceed to the AS 26. Goodwill is an intangible asset. It is mentioned intangible as the one mark question always come, is an intangible asset which cannot be seen, cannot be touched, but have a market value in the terms of money. If I talked about Pizza Bite or Pizza Hut, then you would definitely say Pizza Hut's pizza is very good because Pizza Bite don't have a market value. It enable a firm to earn the higher profit than a normal profit earned by the other firm in the industry. अगर आप बात करें कि चाइना का फोन बिक रहा है और एक एप्पल का फोन बिक रहा है, तो एप्पल की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है ना, तो उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. इट इज़ ड्यू टू द एफर्ट मेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन द पास्ट. वो जो गुडविल होती है, जो रेपुटेशंस होती है, वो मार्केट में कौन करता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर उसे अपनी मेहनत से अर्न करते हैं. At the time of admission, new partner who take the share in the future profit from the existing partner should compensate the sacrificing partner by paying an amount term as premium for goodwill. होता क्या है कि अगर पार्टनर से आप कोई भी means if you are admitting a new partner, then you will sacrifice their share. You will not sacrifice a free of cost. Means you want some compensation for that, and then the new partner, bring the amount of goodwill to compensate the sacrificing partner. If Ram and Sham partner Mohan is want to come into the business, then Ram and Sham will not, give his share, a part of his share to the Mohan. They will say, "Hey, we want some compensation, and in the compensation in the form of premium for goodwill." Here's a term premium for goodwill. This is a mentioned premium for goodwill. I have not, mention here what is the, why I'm not using the word goodwill. Why using the premium for goodwill? Let's see AS26. According to AS26, goodwill is recognized in the books of accounts only when consideration in money or money worth is paid for it. When the goodwill is purchased, it means that only that goodwill is recorded in the books of account. Only that goodwill which we purchase in the form in the terms of money. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा. जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तो व्हाट्सएप की वैल्यू 19 अरब डॉलर लगाई. मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू 19 अरब डॉलर थी, तो उससे 19 अरब डॉलर में खरीदा. नाउ द गुडविल विल बी रिकॉर्ड इन द बुक्स. हमारा यहाँ पे टॉपिक में क्या, पार्टनर लेके आ रहा है, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं, हम उसके बदले उसे कुछ मनी या पैसा नहीं दे रहे, वो लेके आ रहा है. तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ड गुडविल नहीं लगा सकते. वी हैव टू यूज अ टर्म प्रीमियम फॉर गुडविल. एंड कोई भी अकाउंट है, जब उसे ओपन करते हैं हम इसे बाद में कैंसिल करते हैं. आई होप सो कि आपको ये चीज़ें तो समझ आ गई होंगी. सो आगे बढ़ते हैं. नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि कितनी ट्रीटमेंट है हमारे सिलेबस में. बुक्स को देखकर आप नहीं पता लगा सकते कितनी है, लेकिन आई हैव डिवाइडेड दीज इनटू द 6 सेक्टर. First one is goodwill paid privately. We will discuss that. It means that key partner is not bringing the amount of goodwill in business. He or she paying outside the business. Second, goodwill, that is premium for goodwill. We will not use the term goodwill. We will use a premium for goodwill. Is brought in cash or check retained in the firm. Means new partner bringing the goodwill, we are retaining in the forms. Third case is partner bringing the goodwill, but the those who are getting, that is sacrificing partner, receive that amount from the incoming partner will withdraw. It means जब भी नया पार्टनर आएगा जो गुडविल लाएगा, तो वो जो पार्टनर को देगा वो पार्टनर उसे फॉर्म में नहीं रखेंगे, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेते हैं. फोर्थ, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड. वो पार्टनर क्या है कि गुडविल कैश नहीं लेके आके किसी और फॉर्म में लेके आ रहे हैं. व्हेन द पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट, मतलब फुल गुडविल नहीं ला रहे, उसका कुछ पार्ट लेके आ रहे हैं. एंड लास्ट जब वो गुडविल लेके नहीं आया. दीज आर द 6 topics of our this, and we have to keep in mind each and every point when what is the treatment in these 6 kind of treatments. We have a discussion on each and everything gradually.
So let's proceed with the first. Goodwill is paid privately. When the goodwill is paid privately by a new partner or incoming partner to the sacrificing partner, journal entry is not passed in the books of account. It means that मीन्स पार्टनर हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर होती है उसी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पार्टनर जो गुडविल लेके आ रहा है वो बिजनेस में नहीं ला रहा, वो क्या है बिजनेस के बाहर लेके आ रहा है, और वो बिजनेस के बाहर लाया तो बिजनेस में तो कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं, सो वी विल नॉट डू एनी टाइप ऑफ जर्नल एंट्री फॉर दिस. Okay, guys, it is clearly mentioned that goodwill is being private and then you are not required to pass any single entry. Second, goodwill is brought in cash and check and retained in the firm. Means partner पहले goodwill लेके आएगा और फिर हम उसे पार्टनर्स को दे देंगे, वो पार्टनर उसे फर्म में रखेंगे. यहाँ पर अब कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है शुरू करने से पहले. पहली बात, जब भी पार्टनर गुडविल लेके आएंगे, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएंगे, फॉर्म में लाएंगे, और उसे जब हम पार्टनर्स को देंगे तो उसे कैश फॉर्म में नहीं देते, हमेशा अकाउंट में डालते हैं. तो बिजनेस में आपको कोई कैश ट्रांजैक्शन पार्टनर के साथ नहीं करनी, जो भी करा जाएगा उनके अकाउंट के थ्रू करना है. सेकेंड थिंग आपको याद रखना है कि पार्टनर से गुडविल के साथ साथ हम कैपिटल भी मंगवाते हैं, लेकिन कैपिटल इज नॉट एन एसेंशियल. क्वेश्चन कहता है तो ले आते हैं, नहीं कहता तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है. When the new or incoming partner bring the goodwill for his share, it is transferred to the capital account of the sacrifice partner sacrificing. अब आपको sacrifice ratio तो पता ही रख गया होगा कैसे निकालते हैं, old ratio minus new ratio, वो हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो हमें उनके capital account में देनी है. पहली entry, when the capital and goodwill bring by the incoming partner, जब वो लेके आएंगे कैश और बैंक जो भी आपको क्वेश्चन बोलेगा, to new partners capital, ये अगर दी हुई है तो लिख देंगे, नहीं दे रहा कि नहीं लिखेंगे. और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये मेन है जो प्रीमियम फॉर गुडविल, जब वो गुडविल लाएंगे तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लेके आएंगे. टोटल गुडविल हमें क्वेश्चन में कई बार दी होती है तो हम उसमें से उसका शेयर, कोई भी पार्टनर हो, कॉमन सी बात है, वो टोटल गुडविल तो नहीं लाएगा ना, वो जितना उसमें पार्ट शेयर के लिए पार्टनर बनना उतने वो शेयर ले आएगा. सेकंड क्या होगा, फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें इसे कैंसिल तो करना, अकाउंट ओपन हुआ है तो यहाँ कैंसिल भी होगा, और किसको दे देंगे, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में. जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने कैलकुलेट करी होगी, यहाँ कैपिटल करंट दोनों वर्ड यूज करें, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल करंट आएगा, अगर नहीं है तो कैपिटल वर्ड आ जाएगा. तो आई होप सो आपको ये दो एंट्री तो अच्छे से समझ आ गई होंगी. सबसे पहले गुडविल लाना, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर कैपिटल भी दी हुई है तो टू पैटर्स कैपिटल. फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डेबिट करेंगे और किसको दे देंगे, सेक्रीफाइस पार्टनर, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में. अब क्वेश्चन पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है उसका भी एक ना प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं कोई भी चीज़ डायरेक्ट अटेम्प्ट हो जाएगी. तो मैंने मेरे हिसाब से है कि जैसे मेरे 100 मार्क्स आए हैं तो 100 मार्क्स को करने का एक तरीका भी है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. सबसे पहले कैलकुलेट न्यू रेशो. क्वेश्चन में अगर न्यू रेशो नहीं दी हुई है तो आप सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस पहले शूट की हुई हैं. फिर आप क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. उसके बाद कैलकुलेट इनकमिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो पार्टनर गुडविल लेके आएगा वो कितने लाएगा, टोटल गुडविल दी होगी तो उसमें उसका शेयर निकाल देंगे, तो कैलकुलेट. पास एंट्रीज ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल, हमने जो पहली एंट्री करी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. एंड लास्ट, premium for goodwill account debit to sacrificing partner. This is the last step, we will do that. Okay guys, I've taken one illustration for the understanding कि whatever we have discussed, so that उसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझ सकें, how to proceed with the question. A and B are partner, it is mentioned A and B are partner sharing profit 3 ratio 2. C is admitted for 1/2 share and the new ratio is given with 3 ratio 2 ratio 5. If not given, you can easily calculate. C bring, clearly mentioned, it is here clearly mentioned, C bring his share of goodwill in cash and 1 lakh as capital, but his amount is not given. We will calculate goodwill of the firm valued is a new goodwill of the firm, that is 40,000, and his share is 1/2. We will multiply 1/2 with the 40,000, that will come is 20,000, and that's the past necessary journal entry. So let's proceed. That is cash and bank account debit to C's capital. It is given in the 1 lakh as C's capital, and 40,000 multiplied by 1/2, that is 20,000 premium for goodwill, that 20. A total is 1 lakh 20. So 40,000 multiplied by 1/2, that is 20,000. It's goodwill of firm. New partner will not bring total goodwill of firm, is only bring his share.
Then what we will do the next step, we will debit this premium for goodwill and give those who will sacrifice, if maybe A, maybe B, maybe both of. So premium for goodwill will be debited and to A's capital and to B's capital, and sacrificing ratio will come out 3 ratio 2 whenever you calculate old ratio minus the new ratio between A and B. Then A and B will sacrifice his share in 3 ratio 2. So we will divide this 20,000 3 ratio 2 among the partner A and B. Okay guys, move forward. So accounting of the goodwill existing in the books of accounts. Now sometime in questions old goodwill is given, and this old goodwill is an asset show on the asset side of balance sheet. So goodwill existing in the books of account means it is purchase goodwill. अब ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है, ए बी पार्टनर थे तो उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है दैट बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है। अब वो गुडविल वहाँ कैसे आई होगी, क्योंकि ए और बी ने उसे कभी खरीदा होगा, जो खरीदा होगा तो वहाँ पर शो हो रही है, तो उस पर राइट भी किसका, ए और बी का, सी का तो कोई राइट है ही नहीं। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी एडमिशन होगा तो ओल्ड पार्टनर जो भी ए और बी हैं उस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, कैंसिल करेंगे वहाँ से, क्योंकि आज क्या होगा, पार्टनर जो फर्म है रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो नई गुडविल कैलकुलेट होगी, और नई गुडविल कैलकुलेट होगी तो हम उसे आगे यूज करेंगे। तो ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपनी ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, कैंसिल। अगेन आई एम सेइंग दैट ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में कैंसिल करेंगे। So accounting treatment of existing good, there's a two accounting treatment is written off and not written off. जो ये not written off concept है, this is only given in TS Grewal, but I think so this is not in our syllabus. So existing goodwill is written off. This is a part of our syllabus. So I'm just going to discuss about this, but this is given again in the TS Grewal. If student will ask, definitely I will make a separate video on that. फिर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर ताकि आप इसको भी समझे कैसे क्वेश्चन में पता लगेगी। A, B are partners sharing profit 3 ratio 2. C is admitted for 1/2 share and the new ratio is 3 ratio 2 ratio 5. Same as the previous. C bring goodwill in cash and the 1 lakh as capital. So goodwill of the firm valued. Valued means new goodwill. We will multiply his share with the 40,000 and the 20,000 will come out. Goodwill already appear. मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, हमारे सिलेबस में कहाँ कैसे पता लगेगी। अपीयर, गुडविल एग्जिस्ट, गुडविल शोन। अगेन आई एम रिपीटिंग, गुडविल अपीयर, गुडविल एग्जिस्ट, गुडविल शोन। तो समझ जाना ये ओल्ड गुडविल है और इसे पार्टनर ए और बी क्या करेंगे, अपनी ओल्ड रेशो में कैंसिल करेंगे। और सबसे पहले हमें पुरानी गुडविल को कैंसिल करना होता है। तो जब गुडविल होती है वो हमारी एसेट होती है, एसेट्स को कैंसिल करेंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगी टू गुडविल। और उसने ए और बी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपनी ओल्ड रेशो 3 रेशो 2 में क्या कर देंगे, कैंसिल कर दिया। इसके बाद पार्टनर आएगा, अपनी 1 लाख कैपिटल लाएगा और क्या लेके आएगा, गुडविल। कैश और बैंक, जो भी पेपर में वो बोल, जैसे यहाँ कैश बोल रहा था, आप कैश वर्ड यूज कर सकते हैं। 2 सीज कैपिटल 1 लाख इज गिवन एंड 40,000 as multiply by 1/2, that is 20,000 would come out his share of goodwill. So this entry हमने पहले भी पढ़ ली थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर हम इसे ऊपर ले देंगे। सबसे पहले आपको ओल्ड गुडविल को कैंसिल करना है, ये बात याद रखनी है। और गुडविल को डेबिट मत कर देना, रिटर्न ऑफ कैंसिल करने के लिए वो असेट होती है, उसको कैंसिल करेंगे तो नीचे आ जाएगी, टू गुडविल हो जाएगी। ये बात आप यहाँ ध्यान रखना। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, क्रेडिट है, इसको आपको कैंसिल करके क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। फिर किसको देंगे, ए और बी को किस रेशो में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो 3 रेशो 2 मैंने कैसे कैलकुलेट करी है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। आप डी के गोयल बुक को लेंगे और उसमें से क्वेश्चन को करेंगे साथ साथ, या टी एस ग्रीवाल में से करेंगे तो आपको समझ आएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू गिव सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल विद ऑल दीज एग्जाम्पल्स। सो आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए इतनी मेहनत की गई है। There's a third case, partner goodwill is brought in cash and check and sacrificing withdraw। उसे क्या है, वो रखते नहीं है उसको, जैसे हमने उनके अकाउंट में हमने पैसा डाला, उन्होंने वो निकाल लिया। Amount of premium for goodwill brought by the new partner is shared by the sacrificing partner in sacrificing। यहाँ तक तो क्लियर है। The sacrificing partner may withdraw the amount of goodwill fully or partly। वो कई बार होता है, हमने उनको 10,000 रुपये 10 के 10 निकाल लें, 5 निकाल लें,
या फिर 8 निकाले, वो क्वेश्चन में गिवन होता है उन्होंने कितना निकाला है, जब तक लिखा ना हो तो निकाला भी नहीं है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A, B are partners sharing profit 3:2 and the C is admit for 1.5 share and the new ratio is 3:2:5. C bring his share of goodwill in cash, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, and 1 lakh capital. Goodwill of the firm is valued 40 is a total goodwill of firm. Partner withdraw the premium for goodwill. क्लियरली लिखा हुआ पार्टनर विड्रॉ निकाल ली है उन्होंने। फिर एक गुडविल ऑलरेडी अपीयर है, दिस ओल्ड गुडविल। सबसे पहले तो इसको कैंसिल करो आप, गुडविल को आप क्रेडिट करोगे और ए और बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे तो कैंसिल हो जाएगी। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो में। फिर पार्टनर आएगा, क्या लेके आएगा अपनी? कैश और बैंक, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल इज गिवन 1 लाख एंड 40,000 टोटल गुडविल, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो यहाँ से उसे करेंगे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर क्या होगा, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डेबिट करोगे, कर दिया, और किसको दे दोगे? जिस पार्टनर ने क्या करा होगा, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कौन करते हैं? ए और बी। जरूरी नहीं है ए और बी करेंगे, जो भी सेक्रीफाइस करेगा, जिनकी भी सेक्रीफाइसिंग रेशो आई, हो सकता है ए किया है, बी किया है और दोनों किया। हमारे सिलेबस में हमारे मतलब इस टॉपिक में दोनों की आ रही है, ए 3:2, तो उसमें हमने इसे डिवाइड कर दिया। लास्ट, अब इस ए और बी ने ना पैसे निकाल लिए हैं, और उसमें कहा था पूरे निकाल लिए हैं। आप ए की कैपिटल अकाउंट को देखो, डेबिट करा आपने 12,000 से, बी के कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट करा 12,000 से, सॉरी 8,000 से, और यहाँ टू बैंक लिख देंगे। याद रखना हो टू बैंक, पैसा गया। जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो यही तो आता है टू बैंक, तो बैंक से पैसा चला जाएगा और ये हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी। तो पहली एंट्री तभी करनी है जब वो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने वाले जो क्वेश्चन में दिया हो, और लास्ट एंट्री भी तभी करनी है जब प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में बोलेगा उन्होंने निकाल लिए। अदरवाइज बीच में जो दो हैं, पहले गुडविल लेके आना और फिर दोबारा ये वाली देने वाली, ये दोनों हैं, ये हमें करना होगा। सो अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। व्हेन द गुडविल ब्रिंग प्राइवेटली, व्हेन द गुडविल ब्रिंग इन कैश एंड रिटेन इन फर्म, एंड थर्ड विड्रॉ बाय द पार्टनर्स। सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, रिकमेंड टू अदर्स। सबसे मेन है आप औरों से भी कहिए ताकि वो इसका बेनिफिट लें। ओके गाइस, thank you so much. This is Shant Verma, alumni of SRCC. You can follow us on the YouTube, Instagram, and Facebook.